उस दिन में साउंड गड़बड़ कर रहा था मेरा। Good morning, good afternoon, and good evening for everyone joining from different parts of the globe to attend this much awaited Gita Bhushanam course that is designed for us to learn and apply Gita in our daily life. Without further ado, I would like to introduce our course facilitator, His Grace Srinitai Das. His Grace Srinitai Prabhu is a resident monk and lifestyle coach in ISKCON Kolkata. He holds BTech as well as MTech in Electronics and Electrical Engineering from IIT Kharagpur. As a student, he had illustrious career of being a third topper in IIT Kharagpur and also the state topper of Orissa in both 10th and 12th board exams. In the year 2011, he co-founded the Pata Educational Institutions, a blooming edu venture startup in Kolkata, and till date, he continues as a mentor for hundreds of students. As a lifestyle coach, his motivational seminars on varied topics are popular in corporate houses, many reputed schools, and other engineering colleges like IITs and NITs. His yoga workshops, retreats are much awaited. They provide a platform to learn values, ethics, and work life balance to experience the joy of stress free living. He is also an author of the book named Secret Sutras for a Successful, Stress Free, and Sacred Life, which is also available on Amazon for us to
buy and start reading. Finally, with utmost confidence, I can say that in due course of time of this Gita Bhushanam sessions, all of our queries or doubts about our lives will be answered. So let us invite His Grace Srinitha Prabhu to take over the session. Over to you. Hare Krishna. Am I visible and audible? I hope so. I'm so happy to see all of you. Hare Krishna. It's a great pleasure to meet with all of you. Some faces are new and some are old. And old is gold and new is diamond. Hare Krishna. So we'll start with prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य मूकं करोति वाचालं. Hare Krishna. So I'm feeling extremely happy to meet with all of you again and to start our very much awaited. Some of you have switched off your videos, but if you can switch them on, then I'll be able to see it and I'll be able to interact. If you like to see that, it becomes a more of an interactive session than just a lecture, like a what do you say, giving lecture. And because we are going to learn, and it is best if you can interact. So we have a PPT which I will present. So I would like to ask all of you to recite some of the verses from Bhagavad Gita. भगवद गीता का श्लोकों का उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप सब मेरे साथ दोहराएंगे प्रथम अध्याय का तो वो बहुत अच्छा रहेगा. ओके, सो so many of you are opening up the videos. ओके, सो ये हमारा टॉपिक है गीता भूषणम. भूषण मतलब आभूषण. Just like Tanishq Kalyan Jewellers, वो हमको पहनाता है, तो we have आभूषण, ornament. So Gita Bhushanam means actually by applying the knowledge of Gita, we'll be able to ornament our life. So what is the most desired ornament? Let us see. आप सबको मैं पूछता हूँ कि what is the most desired ornament for everyone? So many ladies are there. Let us see. सबसे चाहिता अलंकार जीवन में क्या है जो सब चाहते हैं? ये अलंकार, वो लेडीज हो या जेंट्स हो या कोई भी हो. Let us see. Anyone, you can raise hand and then you can speak out. सबसे चाहिता अलंकार.
Okay, someone is telling knowledge. Oh, knowledge, ठीक है. Anyone else? सबसे चहीता अलंकार. Yes, Amisha madam. Yes, please. Peace and happiness. Very good. One big Hari Bol for Saisha. I don't know. We want. Who's this is Shaisha madam. Is it? I'm saying your name properly. So it's written Saisa in the group. So peace and happiness. Prabhuji, prem. Pray. प्रेम. ओके. प्रेम तो नहीं है. प्रेम तो बहुत मान लीजिए प्रेम से पहले भी आनंद बहुत जरूरत है. हैप्पीनेस. Contentment. सब चाहते हैं अपने जीवन में आनंद. ठीक नहीं. So peace and happiness. शांति होना चाहिए. जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं स्वामी जी जीवन में शांति कैसे आएगा बताइए. शांति का पथ बताइए. सो ये गीता भूषणम जो कक्षा है हमको सिखाएगा कि किस तरह गीता का जो ज्ञान है हम अपने जीवन में लगाएं और जीवन में जो सबसे चहीता भूषण है जो है शांति और आनंद को अपनाएं. सो भगवान ने शांति का मार्ग, आनंद का मार्ग गीता की इस 700 श्लोक में छुपा के रखा है. Krishna has hidden. Oh, keep yourself muted. Someone can ensure that things are muted. So ये 700 श्लोक में शांति और आनंद का ज्ञान छुपा के भगवान ने रखा है. So that is why we have named this course as Gita Bhushanam. It will help us to ornament our life with happiness. So going ahead, कि पहला सेशन जो हम देखेंगे आज, पहला सेशन जो हम आनंद मिलेगा आपको, वो सब मिलेगा, बट क्यों गीता पढ़ने की जरूरत है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है. सो पहला चीज हमको समझना चाहिए कि कौन गीता पढ़ सकता है. जैसे आप सब गीता भूषणम कोर्स कर रहे हैं कि कितने लोगों ने विजय, कितने जानवरों ने कोर्स अटेंड किया है, रजिस्टर किया है. हाउ मेनी एनिमल्स हैव रजिस्टर्ड द कोर्स? नन ऑफ देम. ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, करेक्ट? So the first and foremost thing we have to understand that as humans we have some speciality than animals. मनुष्य और जानवरों में कुछ अंतर है, और वो क्या है आप सबको मैं पूछूंगा. What is that makes humans special than animals? Yes. Now you all can say. क्या मनुष्यों को जानवरों से अंतर, मनुष्य लोग कैसे भिन्न है जानवरों से? Yes, anyone, please. Yes. कौन बताएगा? Someone is telling understanding. अरे अंडरस्टैंडिंग, जानवरों का क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपने देखा है कभी कभी बिल्ली लोग छुप के जो दूध पीते हैं, कभी देखा है घर में? जानवरों का अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई रहता है. तो अंडरस्टैंडिंग इज फाइन. ओके. इंटेलिजेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन. ओके. सेल्फ रियलाइज, विजन एंड गोल अदर देन फूड एंड ग्रोथ. ओके. So someone is telling vision and goal other than food and growth. Intuition power. Okay, intuition power. Anyone else?
some people have raised hands. Yes, you can unmute and speak. Unmute and speak. Yes. Animals are non-political. Okay. That is a different answer. Animals are non-political. But what makes human beings special? Does human beings become political and that's why they're special? The question is, what makes human beings special? क्या हम कर सकते हैं? भक्ति and chanting. Okay, हम सब भक्ति कर सकते हैं. Very good. But human beings, language. Okay. So all of you have said very correct, almost correct answers. But what I was looking for is this statement. So you be very, very attentive here. So human beings have a special characteristics. एक special गुण है मनुष्य में जो जानवरों से अलग है, वो है बदलने का शक्ति, पावर टू चेंज, जो जानवर लोग नहीं कर सकते हैं. जैसे सांप, जैसे someone is a snake, the snake cannot eat grass. It is designed by default to eat rats. उसी तरह एक कुत्ता जो होता है, it is designed to bark. उसको भूकने का, वो म्याऊ म्याऊ नहीं कर सकता है कुत्ता. बट एक मनुष्य को इंग्लिश भी सिखाया जा सकता है, जर्मन भी सिखाया जाता है, चाइनीज भी सिखाया जा सकता है. इंग्लिश इज लाइक दिस, और चाइनीज का आधा शब्द तो हु, हा, हु ऐसे शब्द आता है. तो ये ह्यूमन बीइंग has a very, very, very special quality, that is a human being has the power to change. बदलने का उसके पास शक्ति है, जो मनुष्य, जो एनिमल्स, जो पशुओं को दिया नहीं गया है. पशु लोग जिस तरह पैदा होते हैं, एक कुत्ता पैदा होता है भोभो लैंग्वेज से, और वो मरेगा भी भोभो लैंग्वेज करके. वो कभी म्याऊ म्याऊ नहीं कर सकता है. बट एक मनुष्य पैदा होता है ओडिशा में, या फिर पैदा होता है बंगाल में, वो ब्रह्मांड विश्व का सब नॉलेज सीख लेता है, सब भाषा सीख लेता है. Some human beings, they may be born in India, they start learning French, German, Russian, so many different types of language, Greek. So in this way, we see that human beings have a special power of having to change. And ये एक हितोपदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताया जाता है, जो हम अभी उच्चारण करेंगे. आप सब हाथ जोड़ के उच्चारण कीजिए. आहार निद्रा भयमैथुनं च समयेन एताद् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना. वेरी वेरी सिंपल संस्कृत, बहुत ही साधारण सा संस्कृत है ये, जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि देखिए क्या लिखा हुआ है. आहार, आहार, आहार मतलब, सॉरी went ahead. आहार मतलब it is food. Food. निद्रा मतलब sleep. भय मतलब fight. मैथुनम च मतलब sex life. च, so these four things जो लिखा हुआ बताया गया है, ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीज समयना. समयना मतलब समान है. किससे समान है? मनुष्य और पशु में समान है.
मनुष्य भी ये 4 चीज करते हैं, पशु भी ये 4 चीज करते हैं। पशु भी नरानाम, पशु भी करता है, नर भी करता है। पर धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, पर धर्म एक ऐसा चीज है कि एक व्यक्ति को, मनुष्य को सिखाया जा सकता है। एक मनुष्य को सिखाया जा सकता है तुम कैसे सीखो धर्म के पथ पे चलना, कैसे सीखो अपने जीवन को बदल के धर्म के पथ में चलना। अपना धर्म बदलने का जो शक्ति है केवल मनुष्य को है। कुत्ता का धर्म है भौंकना, कुत्ता मरते दम तक भौंकता ही रहेगा, मियां म्यां नहीं कर पाएगा। पर मनुष्य अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। एक मनुष्य कभी कभी पैदा होता है या फिर चोर हो जाता है, डकैती करता है, मर्डरर होता है, पर उसको अगर सही ज्ञान मिलता है, वो अपना धर्म, कोई कोई होता है ना, उनका धर्म होता है कष्ट देना या फिर किसी को दुख देना, पर उसी व्यक्ति को अगर सही मार्ग पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, उस मनुष्य के पास वो शक्ति है अपनी धर्म, जो दूसरों को कष्ट देने का जो धर्म है, बदल के सेवा में परिणत कर दे। तो ये हम देखते हैं कि जब बचपन में व्यक्ति पैदा होता है तो हर वक्त सोचता है ये मेरा है, ये मेरा है, खिलौना को कुछ शेयर नहीं करना चाहता है, ये मेरा खिलौना है, ये है, वो है। पर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उसका चेतना का विकास होना चाहिए और वो उसमें सेवा भाव जागृत होना चाहिए। He should take responsibility. Previously when he was a small child, he may think मेरे पिताजी माताजी तो सब कर रहे हैं, but later on he must take responsibility of the family and responsibility of not just family but of the society and community. So बचपन में वो मनुष्य का धर्म, वो बच्चा का धर्म क्या था? सब मेरा है, ये खिलौना मेरा है, सब कुछ मेरे को मिलना चाहिए, सब मैं खा लूंगा। बट जैसे ही वो बड़ा होता है, वो सोचता है अरे केवल मैं क्यों खाऊंगा, मेरी दीदी भी खानी चाहिए, पिताजी को खाना मिला कि नहीं, मेरी मम्मी को खाना मिला कि नहीं, करेक्ट? तो वो केवल मनुष्य में है। मनुष्य केवल मनुष्य के पास ही भगवान ने शक्ति दिया है अपना धर्म को परिवर्तन करना। धर्म मतलब हियर इज नॉट रिलीजन, धर्म मतलब अपना कैरेक्टरिस्टिक नेचर। जैसे कुत्ता का धर्म है भौंकना, बिल्ली का धर्म है म्याऊ म्याऊ करना, बट कुत्ता बिल्ली ये सब कभी अपना धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। So this is what is the speciality of a human being. The speciality of a human being is his power to change. तो भगवत गीता is a book which will give us strength to change and control in our life. Why we are unhappy? अगर हम देखेंगे हमको शांति क्यों नहीं मिलता है जीवन में? Because we don't have control on ourselves. Correct? We cannot control our emotions. We cannot control our how to respond in particular situation, and that is why we become asanti. That is why we become stressful. Bhagavad Gita will help us and give us power to change from a particular setup जहां पे हम अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे. Now we have more control over ourselves. So this is what Bhagavad Gita is going to tell you. By reading Bhagavad Gita, understanding Bhagavad Gita, applying the principles of Bhagavad Gita, हमारे जीवन में शक्ति मिलेगा अपने आप को बदलने के लिए, to change ourselves, to make ourselves a better person. जो है हमारे अंदर, पर उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, just because आपके अंदर है. उदाहरण स्वरूप, very striking example, please hear it with attention. जैसे एक तोता होता है, पैरट. तोता के पास भगवान ने ऐसे शक्ति दिया है कि मनुष्य की तरह बोल पाए, करेक्ट?
पर मैं वृंदावन में जब गया था, बहुत सारे तोता उड़ रहे थे, पर कोई मनुष्य की तरह बोल नहीं रहा था। क्यों? शक्ति तो है तोता के पास। Every parrot has the power to speak like a human being. But why every parrot is not able to speak like a human being? Because training is required. वही तोता जंगल से जब आ जाता है और शिकारी उसको किसी को दे देता है और उसको सिखाया जाता है मनुष्य की तरह बोलना, वो मनुष्य की तरह बोलने लग जाता है। पर जंगल का तोता ऐसे ही रहता है, बोल नहीं पाता। सो जिस तरह तोते के पास मनुष्य रूप से बोलने का शक्ति है, पर फिर भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसी तरह भगवत गीता इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग आवरसेल्फ। हमारे पास शक्ति है, द पावर टू चेंज, बट भगवत गीता विल हेल्प अस गेट ट्रेन्ड हाउ टू चेंज एंड हाउ टू इंप्रूव इन आवर लाइफ एंड डेकोरेट आवर लाइफ विथ पीस एंड हैप्पीनेस। So this is what this श्लोका, ये जो श्लोक है ये हितोपदेश में भी आता है और महाभारत में भी इस श्लोक का उल्लेख किया गया है। तो ये श्लोक महाभारत में भी आता है। आगे हम बढ़ेंगे। तो भगवत गीता का पहला अध्याय में 3 लोगों को उल्लेख किया गया है, प्रमुख 3 लोग। वो है धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन। These are the 3 personalities primarily introduced in Bhagavad Gita who are giving their speech, right? एक है धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन। तो we will start with the first श्लोका of Bhagavad Gita। आप सब उच्चारण कीजिए। This is the first shloka of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita starts with a question by Dhritarashtra. धृतराष्ट्र के प्रश्न से भगवत गीता चालू होता है। और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र उवाच। उवाच मतलब संस्कृत में बोल रहे हैं। क्या धृतराष्ट्र बोल रहे हैं? संजय को बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, देखिए क्या बताया गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र भी कहला जाता है, समवेता एकत्रित हुए हैं, युयुत्सवः, युयुत्सव मतलब युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कौन कौन युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो नेक्स्ट 3rd लाइन में है, ध्यान से सुनिए। मामकः पांडवश्चैव, मेरे पुत्र, मामका मतलब मेरे पुत्र, पांडवश्चैव, पांडव भी उपस्थित हुए हैं और मेरे पुत्र भी उपस्थित हुए हैं। और होने के बाद किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं बताओ संजय? उपस्थित तो हो गए, तो लगेगा हाँ क्या क्या, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में हमारे जीवन में बहुत लेसन्स, वी कैन डिराइव लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। हमारे जीवन में इसको बहुत अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे, वो आगे हम देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम्स ओके, ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडव एकत्रित हुए हैं और क्या कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। बट वी सी दैट ऑन अ 3 लेवल, 3 स्तर पे इस प्रश्न को हम देखेंगे आज। तो पहला है, धृतराष्ट्र अंधे थे, पर धृतराष्ट्र खाली शकल से अंधे नहीं थे, अकल से भी अंधे थे। धृतराष्ट्र was not just blind physically, he was blind spiritually and mentally also. How? Dhritarashtra is speaking in the previous verse, what? मामकः पांडवस, मतलब वो अपने पुत्र और पांडव पुत्रों में भेद देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं
धृतराष्ट्र क्या सोच रहा है? धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि दुर्योधन और कौरव मेरे पुत्र हैं और मेरे वेल विशर हैं, मेरे अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। करेक्ट? So Dhritarashtra was blind enough to not understand that Duryodhan is his enemy and Yudhishthir is his real friend. Duryodhan is his inimical son and Yudhishthir is his real son. And to prove, ये बताने के लिए आपको हैरानी होगा, जब संपूर्ण महाभारत खत्म हो गया और कौरव सब मर गए, सब कुछ हो गया, युधिष्ठिर महाराज फिर भी राजा नहीं मिले और धृतराष्ट्र और गांधारी ही राजा और रानी बने थे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये। युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद भी धृतराष्ट्र की सेवक बन के ही राजत्व संभाले। समझ सकते हैं युधिष्ठिर महाराज का क्या लेवल था। यही धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज की पत्नी द्रौपदी, जो उनकी बहुरानी है, भरी सभा में उनको नग्न करने का दुस्साहस किया था अपने बेटों के साथ। पर युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी की साधुत्व देखिए। जस्ट इमेजिन द नोबिलिटी ऑफ युधिष्ठिर महाराज एंड द्रौपदी। युधिष्ठिर महाराज नेवर अबैंडन्ड धृतराष्ट्र एंड गांधारी, कभी भी त्याग नहीं किया। 100 पुत्र मरने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र की तरह, धृतराष्ट्र को अपने पिताजी की तरह ही सेवा किए। दिस इज धृतराष्ट्र's blindness. धृतराष्ट्र always considered युधिष्ठिर महाराज his enemy. युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु मतलब जिसके लिए शत्रु पैदा नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे, पर उस व्यक्ति को अंधा धृतराष्ट्र अपना शत्रु माना और अपना पुत्र दुर्योधन को अपना मित्र माना, और जो वही दुर्योधन पूरा कौरव वंश का नाश का कारण बन गया। So this is blind attachment. So sometimes when we are blindly attached, then we are not just blindly attached. Dhritarashtra was also neglectful of good advice. कितने लोग धृतराष्ट्र को अच्छा उपदेश दिए, विदुर ने दिया, अक्रूर ने दिया, कृष्ण ने पर्सनली अक्रूर को भेजा, अरे जाओ धृतराष्ट्र को समझा के आओ, क्या कर रहा है, पागल हो रहा है, पूरा वंश नाश हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण तो रिलेटेड थे ना, कुंती वसुदेव की बहनी हुई, तो बुआ जी लगे कुंती देवी। तो पांडव कौरव के परिवार तो कृष्ण से भी जुड़े हुए थे, बट किसी का भी उपदेश नहीं सुना धृतराष्ट्र ने। तो इसीलिए वो खाली शकल से अंधा नहीं था, अकल से भी अंधा था। He was neglectful of the good advice of विदुरा, अक्रूरा। कृष्ण स्वयं गए थे धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए, शांति दूत बन के, कुछ नहीं समझा। सो भगवत गीता स्टार्ट्स विथ धृतराष्ट्र's blindness. So हमको भी समझना चाहिए, we are also spiritually blind like Dhritarashtra. And Bhagavad Gita is a book which will cure us from our spiritual blindness. And what is this spiritual blindness? Is Viveka Buddhi. आपको पता होगा हिंदी में एक शब्द है जिसका शब्द है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि मतलब सही और गलत में पार्थक्य जानने का शक्ति। It is called conscience in English. Conscience मतलब
the power to understand who is my real friend, who is my real enemy, the power to understand what is real good for me, what is real bad for me. And we are all, unfortunately, blind in this regard. And Bhagavad Gita is introducing to us Dhritarashtra as an example, that this Dhritarashtra is personification of spiritual blindness, personification of not understanding. Are Yudhishthir is my actually son. Duryodhan is not son, he is my enemy. And it takes us ahead and gives us the knowledge how to overcome our spiritual blindness. So that is why this first shloka is very, very important. Mamaka Pandavaschaiva. मेरा और पांडव में क्या हो रहा है, मतलब धृतराष्ट्र अब तक भी युद्ध चालू होने वाला है, फिर भी धृतराष्ट्र समझ रहे हैं कि पांडव मेरे पुत्र नहीं है, दुर्योधन और कौरव ही मेरे पुत्र हैं. इतना सब कुछ होने के बाद, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ हिज स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस. सो विवेक बुद्धि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. और जब विवेक बुद्धि चला जाता है, व्यक्ति क्या ना क्या कर देता है, अंधा हो जाता है. कभी कभी हम देखते हैं व्यक्ति क्रोध से अंधा हो जाता है, काम से अंधा हो जाता है. और हम कभी कभी हमारे इस्कॉन में जेल में जाके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और जेल में आप अगर, और कभी कभी जेलर लोग हमको बुलाते हैं कि आप स्वामी जी आइए कथा कीजिए. और कभी कभी डर लगता है कि बाप रे, मर्डर लोग सब बैठे हुए हैं. और कभी कभी जाते हैं तो जेलर इंट्रोड्यूस भी करता है, स्वामी जी ये 4 मर्डर किया है, स्वामी जी ये 3 मर्डर और 4 रेप किया है, और सब बैठे हुए हैं. और हम उन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और पूछते हैं आपने ऐसे क्यों किया. हर व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी पता नहीं उस समय क्या हो गया, मैं अंधा हो गया और अभी मैं सोच रहा हूं हाय 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 क्यों ऐसे किया. ये है विवेक बुद्धि. ये दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस. सो भगवद गीता विल एम्पावर अस विद दिस विवेक बुद्धि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. तो ये धृतराष्ट्र समझ नहीं पाया, and he was neglectful of all the good advice that was given, and because of which Bhagavad Gita first chapter introduces a disturbed Dhritarashtra who is spiritually blind. आध्यात्मिक अंधकार में हम डिस्टर्ब्ड रहेंगे. अगर जीवन में शांति की आपको इच्छा है, शांति प्राप्त की इच्छा है, आनंद प्राप्त की इच्छा है, आध्यात्मिक तरीके से हमारा आंखें खोलना पड़ेगा. जैसे बॉलीवुड मूवीज में आपने सुना है ना, तूने मेरी आंखें खोल दी. तो अगर हमको आनंद और शांति चाहिए, पहले हमको अपना आंखें खोलना पड़ेगा. धृतराष्ट्र की तरह रहेंगे तो जीवन में शांति और आनंद कभी नहीं मिलेगा. धृतराष्ट्र को शांति था ही नहीं. He was always disturbed because of spiritually blind and neglectful of good advice. Going ahead, Bhagavad Gita also introduces a diplomatic Duryodhana. In the next further slokas, ये श्लोक आता है, पश्यताम पांड. अभी दुर्योधन क्या कर रहा है, युद्ध से पहले ये भगवद गीता में आता है कि जाता है भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को बोलने लग जाता है कि हमारा देखिए, हमारा ये सब है, बहुत कुछ है. तो ये पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता. ये दुर्योधन बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, हे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं. देखिए कितना डिप्लोमेटिक है दुर्योधन. तो द्रोणाचार्य को क्या बोल रहे हैं कि पश्यताम, आप देखिए हे द्रोणाचार्य, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों को देखिए, आचार्य है आचार्य, महतिम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण. देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है जो है द्रुपद पुत्रेण.
दुर्योधन इज यूजिंग द्रोणा, टेलिंग टू द्रोणाचार्य, आप द्रुपद के पुत्र को देखिए, पांडव के साइड में है, द्रुपद की पुत्र को। तो द्रुपद के पुत्र में क्या प्रॉब्लम है? द्रुपद के पुत्र हुए धृष्टद्युम्न। द्रुपद और द्रोणाचार्य का झगड़ा था, और महाभारत में आता है उन झगड़ा के बारे में। द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किए थे, और पढ़ाई करते समय द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोला, मैं जब राजा बन जाऊंगा आधा राज्य तुमको दे दूंगा। द्रोणाचार्य उतना सीरियसली नहीं लिए, पर एक दिन द्रोणाचार्य बहुत, फिर गुरुकुल खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। एक दिन द्रोणाचार्य के घर में कुछ था नहीं, तो द्रोणाचार्य सोचे मैं द्रुपद के पास जाता हूँ, मेरे दोस्त के पास जाता हूँ, तो बोला था। पर जब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने बहुत निंदा किया द्रोणाचार्य को। अरे तुम भिखारी है, तुम कहां से आ गया, मैं ऐसे बचपन में कुछ बोल दिया था, तुम उसको भी सीरियसली ले लिया, ऐसे बोल दिया। तो द्रोणाचार्य को बहुत खराब लगा, और द्रोणाचार्य ने पांडवों को ट्रेनिंग देके अर्जुन और पांडवों को भेजा था द्रुपद को बांध के लेके आने के लिए। और पांडव लोग, जब पांडव लोगों का शिक्षा खत्म हुआ, गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बांध के लेके आने के लिए बोला। और जब द्रुपद को बांध के लेके आगे आने गया, और द्रुपद को बहुत निंदा किया, निंदा हुआ उसका, इसलिए द्रुपद जी ने एक यज्ञ किया जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए। धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र हुए और द्रौपदी पुत्री हुई। द्रौपदी का विवाह अर्जुन और पांडवों से हुआ, और धृष्टद्युम्न पांडवों का कमांडर इन चीफ, मतलब सेनापति बना। और मिस्टर दुर्योधन को यह पता था कि द्रुपद और द्रोण के बीच में चल रहा है खिचपिच, और उस खिचपिच को जब बताया जाता है तब ना द्रोण थोड़ा गुस्सा होंगे, मारने के लिए तैयार होंगे। तो दिस इज द डिप्लोमेसी ऑफ दुर्योधन। सो दुर्योधन इज fully skillfully diplomatic, how to incite the anger in Dronacharya. And now he is in the next verses, he goes to, अभी तो द्रोणाचार्य के साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद देखिए भीष्म के बारे में बता रहे हैं। एक 10 में, वो 1:3 था, फिर 1:10 में। तो अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्वइदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन अपना गरिमा बोल रहा है कि अरे अपर्याप्तम, हमारा जो स्ट्रेंथ है भीष्म से प्रोटेक्टेड है और अनंत है। पर्याप्त मतलब मेजरेबल, अपर्याप्त मतलब इमेजरेबल। बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म से हम प्रोटेक्टेड हैं। दुर्योधन बोल रहा है हमारा क्या हो सकता है। जस्ट इमेजिन द ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ दुर्योधन। और ये तो उस साइड में तो भीम है, बट पांडवों को कोई नाम नहीं उच्चारण करके दुर्योधन भीम का नाम उच्चारण कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि दुर्योधन सबसे ज्यादा भीम से डर रहे थे, क्योंकि भीम ने संकल्प लिया था कि मैं सारे 100 कौरवों को निहत्य करूंगा, मार दूंगा। ये संकल्प लिए थे भीम। और हालांकि दुर्योधन डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं, बट इस श्लोक से पता चल रहा है कि दुर्योधन भी कितना डिस्टर्ब्ड है। सो दुर्योधन इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड seeing the strength of the Pandavas. दो भीष्म है, पर दुर्योधन को पता है कि भीष्म पांडवों को प्रेम करते हैं, इसीलिए दुर्योधन भी डरा हुआ है। So with all diplomacy, Duryodhan is also disturbed. So Bhagavad Gita introduces disturbed Dhritarashtra and a disturbed Duryodhana. And also
a disturbed Arjuna. So Bhagavad Gita is the perfect book of stress management. चैप्टर शुरू होते ही 3 लोग डिस्टर्ब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. हम बोलते हैं ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया जीवन में, हमारे जीवन में शांति नहीं है. भगवत गीता शुरू से ही पहला चैप्टर में ही 3 लोगों का डिस्टर्ब दिखा देता है. देखिए मैं तो पहला चैप्टर के ही श्लोक बता रहा हूं सब. तो ये लास्ट श्लोका है भगवत गीता का, जिसमें भगवत गीता इंट्रोड्यूसेस ए डिस्टर्ब्ड अर्जुना. संजय उवाच एवं उक्ता, अर्जुन बहुत कुछ बोलते हैं पहले अध्याय में, वो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे. एवं उक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः. देखिए क्या लिखा हुआ है. शोक, शोक मतलब दुख. संविघ्न, संविघ्न, विघ्न मतलब उद्विग्न, डिस्टर्ब. संविघ्न मतलब सम्यक रूपेण. आपको मैं जब भगवत गीता का हमारा क्लास होगा, संस्कृत के बारे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा. आप अगर नोट्स लिखेंगे तो आप ये पूरा भगवत गीता का कोर्स होने के बाद आप खुद संस्कृत का श्लोक पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या बताया गया है. विघ्न मतलब डिस्टर्बेंस. हम बात करते हैं ना, उसके घर में बहुत विघ्न चल रहा है. विघ्न मतलब डिस्टर्बेंस. सम जब ऐड हो जाता है संस्कृत में, वो हो जाता है सम्यक. सम्यक मतलब कंप्लीट. संविघ्न मतलब कंप्लीट विघ्न. संविघ्न मानसः, मन अर्जुन का कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड हो गया. विसृज्य, विसृज्य मतलब उतर गए. ससरंग चापम, रख दिया अपना जो चाप. चाप मतलब बोलते हैं ना रामचंद्र को, उनका सर चाप धर. चाप मतलब धनु, गांडीव धनु को और सर को रख दिया. रथोपस्थ, और बैठ गए. उपस्थ मतलब बैठ जाना, उपस्थित बैठना. रथोपस्थित मतलब रथ में बैठ गए. तो भगवत गीता introduces a depressed and disturbed Arjuna. That Arjuna जब देखे कि हाय हाय हाय, मेरे को भीष्म को मारना है, मेरे को द्रोण को मारना है, भीष्म तो मेरे पितामह हैं और द्रोण तो मेरे गुरु हैं, उन सबको मारना है अगर युद्ध जीतना है. हाय हाय हाय, कहाँ आ गया मैं, क्यों युद्ध लिया, ऐसे ऐसे करके अर्जुना इज ऑल्सो डिस्टर्ब. अर्जुना सेज कि अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं. और इस तरह हम भी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं. कभी कभी हस्बैंड वाइफ में खिचपिच हो जाता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है. हस्बैंड क्या बोलता है, हाय हाय हाय, किस लड़की से शादी कर लिया मैंने, क्या जीवन में पाप किया था, हाय 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 हाय. ऐसा होता है कि नहीं? या फिर हस्बैंड वाइफ में खिचपिच होता है, वाइफ बोलते हैं किस जीवन का कर्म भगवान उतार रहे हैं इस व्यक्ति के साथ शादी करवा के, हाय हाय हाय. तो so sometimes we are also disturbed. and हम क्या बोलते हैं, और नहीं रह सकते हैं, सब छोड़ छाड़ के मैं जा रहा हूं हिमालय. तो अर्जुन भी ऐसे बता रहे हैं. so we can understand how relevant and practical this Bhagavad Gita is. Just like Arjun is disturbed and he is telling, हे कृष्ण मेरे को और नहीं करना है, कुछ युद्ध नहीं करना है, मेरे को छोड़ छाड़ के जाना है, हिमालय चले जाना है. उसी तरह कभी कभी हमारा भी सिचुएशन आता है. और उसी तरह दुर्योधन और धृतराष्ट्र का भी सिचुएशन है. धृतराष्ट्र इज डिस्टर्ब्ड, दुर्योधन इज डिस्टर्ब्ड, अर्जुन इज डिस्टर्ब्ड. बट द डिफरेंस लाइज इन as Bhagavad Gita goes ahead, that though Dhritarashtra was disturbed, Duryodhan was disturbed, Arjuna was disturbed, but Arjun कृष्ण का सहायता लिए. और क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की सहायता लिया, अर्जुन took help of Krishna, and Dhritarashtra and Duryodhan never took help of Krishna. That is why though Arjun was also disturbed, but Pandavas were victorious.
So here lies the answer of the main lesson of Bhagavad Gita, first chapter, that is the power to change is there in every human being. अपने आप को, अपने जीवन को बदल के शांति लेके आना, जीवन में आनंद लेके आना, जीवन को प्रगतिशील बनाने का शक्ति हर मनुष्य में है। पर जब तक हम भगवत गीता का ज्ञान और कृष्ण की प्रेम को हमारे जीवन में लेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, we will not get that strength to change. क्योंकि बदलने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। And that strength to change can only come through power of love. So Bhagavad Gita not just introduces the power to change, Bhagavad Gita in the first chapter introduces power of Krishna's love. कृष्ण की प्रेम की शक्ति को इंट्रोड्यूस किया जाता है भगवत गीता में, जहां पे कृष्णा मेक्स हिज इंट्रोडक्शन इन भगवत गीता अपीयरेंस एज ए चैरियट ड्राइवर, रथ चलाते हुए सारथी बन जाते हैं। तो सारथी का क्या प्रेम होता है? सारथी बनने क्या बहुत क्या उसमें प्रेम की क्या परिभाषा क्या है? तो सारथी बनने का प्रेम की परिभाषा ये कहानी से हम सीखते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे। He went to South India. He met a Brahmin, and this Brahmin was reading Bhagavad Gita and he was seeing this picture. You see this picture? He was seeing this picture of Bhagavad Gita and he was crying. रो रहा था वो व्यक्ति, फूट फूट के रो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को पूछे, क्यों तुम रो रहा है? भगवत गीता पढ़ना नहीं आता है क्या? क्यों रो रहा है तुम? ना मेरे गुरुदेव ने बोले हैं कि हर दिन भगवत गीता पढ़ने के लिए, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हो तुमको संस्कृत नहीं आता है क्या, इसीलिए पढ़ नहीं पा रहा है? क्यों रो रहा है? ना 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 ना, मैं तो इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि कृष्ण जो भगवान है वो कैसे सारथी बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ठीक है, कृष्ण सारथी बन गए, इसमें बड़ा बात क्या है? तो ब्राह्मण बताता है कि सारथी का पोजीशन बहुत ही खराब होता है। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल व्हाट इट, समझाने के लिए सारथी क्या होता है। देखिए, युद्ध जब होता था पहले जमाने में, बहुत शोर शराबा होता था। हाथी का शोर शराबा, घोड़े का शोर शराबा, तलवारों का शोर शराबा, इतना शोर शराबा होता था। और अर्जुन अगर पीछे से बोलेंगे, हे कृष्ण बाएं तरफ मुड़ेंगे क्या, कुछ सुनाई नहीं देगा। हे कृष्ण दाएं ओर जाएंगे क्या, कुछ सुनाई नहीं देगा। तो कैसे अर्जुन कृष्ण को बोलते थे दाएं जाना है, बाएं जाना है? अर्जुन लात मारते थे पीछे से। सारथी मतलब उसको लात खाना है। योद्धा का लात खाने से ही कोई व्यक्ति सारथी बन सकता है। तो कृष्णा was ready to take kicks from Arjuna to become his Sarathi. That is power of Krishna's love. He is God himself. He is the supreme Lord. भगवान है, but he is ready to take even kicks from Arjuna. अर्जुन दाएं और लात मारते थे, कृष्ण रथ को दाएं ओर लेते थे, बाएं ओर मारते थे तो बाएं ओर लेते थे, बीच में मारते तो सीधा चलते थे, और 2 बार मारते थे तो रुक जाते थे। पूरा कंडक्टरी का काम किया है। देखा है ना बस कंडक्टर कैसे होता है। तो कृष्ण ऐसे सारथी बने थे। So Bhagavad Gita introduces Krishna as the chariot driver, showing the power of love. उसी तरह हम भी अगर हमारे जीवन में कृष्ण को सारथी बनाएंगे तो हमारा जीवन का डिस्टर्बेंस अंत होगा। ये पहला अध्याय का शिक्षा भगवान दे रहे हैं, वेद व्यास जी दे रहे हैं भगवद गीता के द्वारा।
कि हमको अपना जीवन का सारथी अर्जुन जैसे कृष्ण को बनाए, उसी तरह हमको अपना जीवन का सारथी कृष्ण को बनाना है। तो फायदा क्या होगा कृष्ण को सारथी बनाने के लिए? कृष्ण वो उदाहरण भी भगवत गीता का प्रथम अध्याय में बताते हैं। प्रथम अध्याय में भीष्म को बताया जाता है। भीष्म इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। भीष्म वाज सो पावरफुल। भीष्म के पास वो शक्ति था कि एक इकलौता भीष्म सारे पांडव, सारे कौरवों को मारने का शक्ति था उनके पास। पूरा पांडव सेना, पूरा कौरव सेना, पांडव सेना 7 अक्षौणी था और कौरव सेना 11 अक्षौणी था। मतलब 64 crore people, fighters were assembled as far as Mahabharata says. 64 crore people had assembled. 64 करोड़ योद्धा को मारने का शक्ति उनमें था, भीष्म में था। पर even Bhishma had that power to demolish everyone. Still भगवान ने भीष्म को कौरव लोगों के पास देके और कौरवों को हरा के बताया कि भीष्म भी अगर अधर्म के साइड में है, फिर भी अधर्म का जीत नहीं होगा, उसका हार होगा। That is power of love. भीष्म तो बड़े भक्त हैं भगवान के, किसी को पता नहीं। हम भारत में हर दिन सुबह सुबह सुनते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, करेक्ट? ऑल ऑफ यू वुड हैव heard Vishnu Sahasranam, correct? How many of you have heard Vishnu Sahasranam? We all have heard Vishnu Sahasranam, right? हम सब ने विष्णु सहस्त्रनाम सुना है। और वो विष्णु सहस्त्रनाम कौन बोला है? भीष्म बोले हैं। विष्णु सहस्त्रनाम चालू होता है भीष्म उवाच से। मतलब भीष्म इतने बड़े भगवान के भक्त थे। इतने बड़े भक्त अगर थे भीष्म, तो फिर कौरवों के साथ क्यों युद्ध किए? पांडवों के साथ करना चाहिए ना। भीष्म जब युद्ध चालू हुआ, भीष्म बताए कृष्ण के साथ बातचीत आता है और कृष्ण स्पेसिफिकली टोल्ड भीष्म टू फाइट विद द कौरवास इन ऑर्डर टू शो दैट अधर्म के साइड में भीष्म जैसे भी अगर कोई व्यक्ति आ जाए, फिर भी अधर्म का जीत नहीं है। जस्ट टू प्रूव that even if there is a person as powerful as Bhishma, even then evil cannot reign. The victory will be always for dharma. Dharmo rakshati rakshita. This is power of love. अगर कृष्ण को हमारे जीवन का सारथी बनाएंगे तो रक्षा होगा। With all skills, with all strength, with all diplomacy, the Kauravas could not win. Pandavas were victorious because Krishna was the chariot driver. रथ चला रहे थे पांडवों का, इसीलिए। So जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है, ये महाभारत में आता है, युद्ध जब खत्म हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर आता है इसी के ऊपर, जो मैं कहानी अभी बताने वाला हूँ। एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन उतर जाओ, रथ से उतरो। तो अर्जुन बोलते नहीं भगवान आप उतरिए फिर मैं उतरता हूँ। कृष्ण बोलते नहीं तुम पहले उतरो। अर्जुन बोलते नहीं आप उतरिए। कृष्ण बोलते तुम उतरो। तो ऐसे थोड़ा बातचीत होता रहता है। फिर कृष्ण जबरदस्ती करते हैं अर्जुन तुम उतरो, मैं आदेश देता हूँ। फिर कृष्ण के आदेश सुन के अर्जुन उतर जाते हैं। तो अर्जुन उतर के थोड़ा आगे जाते हैं, फिर कृष्ण उतरते हैं। और जैसे ही कृष्ण उतरते हैं, पीछे पूरा जो रथ था, कृष्ण जैसे ही पैर नीचे लगाते हैं दोनों, रथ पूरा भस्म हो जाता है। So that is power of love of Krishna.
कृष्ण को अगर हम अपने जीवन में सारथी बनाएंगे, there will be always victory in our life, happiness in our life and peace in our life. ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय बताता है। कृष्ण को अपना जीवन का सारथी बनाइए। आप अर्जुन की तरह डिस्टर्ब भी हैं, नो प्रॉब्लम। टू गेट डिस्टर्ब इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर अर्जुन डिस्टर्ब हो सकता है तो हम तो 4 व्यक्ति हैं, हम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। जीवन में डिस्टर्ब होना नो प्रॉब्लम, बट जीवन में क्या हम भगवान को अपना जीवन का सारथी बना रहे हैं? दैट इज वी हैव टू थिंक। जो भगवत गीता बताता है, अर्जुना इज डिस्टर्ब, धृतराष्ट्र इज डिस्टर्ब, दुर्योधना इज डिस्टर्ब, बट द डिफरेंस इज भगवत गीता इज टीचिंग अस बिकम अर्जुना, मेक कृष्णा योर चैरियट ऑफ योर लाइफ। So Arjuna accepted Krishna's power of love, and Krishna's power of love is also available to all of us, to every one of us. जिस तरह सूर्य की तरह शास्त्र बताता है, कृष्ण सूर्य समा माया हय अंधकार। कृष्ण सूर्य की समय है, कृष्ण की कृपा, कृष्ण की प्रेम सूर्य की तरह है। भगवत गीता तो सबके पास है ना, इट इज ओपन। गूगल सर्च करेंगे सब श्लोक मिल जाएगा आपको। जिस तरह सूर्य इज अवेलेबल, सूर्य की रश्मि इज अवेलेबल टू एवरीवन, बट कोई अगर घर के अंदर प्रवेश करके रहता है, अगर घर के अंदर बैठा रहता है, दरवाजा बंद कर लेता है, खिड़की बंद कर लेता है, उसको सूर्य दिखाई देगा क्या? उसको सूर्य रश्मि मिलेगा क्या? Will he ever get sunlight? So exactly in the same way, Krishna's love is available to everyone impartially, but we need to also accept Krishna's love in our life. We need to come out and start reading and accepting Bhagavad Gita in our life. भगवत गीता को हमारे जीवन में लागू करना, अपनाना पड़ेगा। जिस तरह सूर्य is available, sunlight is available, but one needs to come outside to accept sunlight. Similarly, one needs to accept the message of Gita, understand it, get educated, get trained in Gita, so that one gets the power of love of Krishna. So Bhagavad Gita प्रश्न से चालू होता है। पहला श्लोक क्या था? हम थोड़ा बैक जाएंगे अभी। भगवत गीता प्रश्न से चालू होता है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, क्या हो रहा है? ये प्रश्न से भगवत गीता चालू होता है और भगवत गीता एंड होता है उत्तर से। द लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता इज द आंसर दैट संजय गिव्स टू धृतराष्ट्र। कि धृतराष्ट्र, आप पूछ रहे हैं कि जीत किसका होगा, मैं बताता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का, ये उत्तर है। दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता, ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। देखिए कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं संजय। धृतराष्ट्र ने भगवत गीता का शुरू में प्रश्न पूछा कि किसका, पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, कुरुक्षेत्र है, किसका जीत होगा, क्या होगा, किम कुर्वत, क्या होगा? तो देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या होगा, क्या हो जाएगा। यहाँ बता रहे हैं कि यत्र, जहां जहां, योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है, जहां पार्थ है मतलब अर्जुन है, तत्र, वहां पे श्री मिलेगा, धन तो उधर ही रहेगा। क्योंकि कृष्ण लक्ष्मीपति है तो लक्ष्मी तो उधर ही रहेगा ना, उधर ही विजय होगा, पांडवों को ही विजय मिलेगा और सारा भौतिक सुख और आनंद पांडव लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि वो नीतिवान है, दे आर मोरल। मतिर ममा, ये मेरा मानना है। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, मेरा मानना ये है, मेरा मानना है, क्या होगा पता नहीं, पर मेरा मानना है कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है,
वहीं पे ही जीत होगा, वहीं पे ही आनंद आएगा। सो भगवत गीता स्टार्ट्स विथ ए क्वेश्चन and it ends with an answer, and all the 698 700 श्लोक है भगवत गीता में। फर्स्ट श्लोका is question, last श्लोका is answer, and 698 श्लोकास in between are the middle portion, are the explanation of why, if we accept Krishna in our life, how we can be happy। किस तरह हम अपने जीवन में कृष्ण को अपनाएं, ये सिखाता है भगवत गीता 698 श्लोक में, ताकि हम ये लास्ट श्लोक का हमारे जीवन में अपना पाएं। कि इस तरह संजय बता रहे हैं, फर्स्ट इज अ क्वेश्चन, लास्ट इज द आंसर। तो जीत होगा केवल पांडवों का। सो भगवत गीता is Krishna's message of love. So Krishna is giving us WhatsApp message. Did you read my love letter Bhagavad Gita? And answer क्या है? ठीक है, पढ़ लेंगे, चलेगा। But हमारा आंसर होना चाहिए, yes, I am reading your message of love. So choice आपका है। आपका चॉइस है कि कृष्ण की व्हाट्सएप जो आया है, कृष्ण की व्हाट्सएप मैसेज भगवत गीता जो प्रेम की व्हाट्सएप है, कोई प्रेमिका भगवत गीता की तरह मैसेज नहीं दे सकता है जिस तरह कृष्ण हमको प्रेम का संदेश भगवत गीता में दे रहे हैं। और आप सबके पास वो चॉइस है, आप सबके पास you all have that choice, freedom to accept Krishna's message of love or not. सो गीता महात्म्य में भगवत गीता का गुण बताते हुए बताया जा रहा है। 3 श्लोक हम उच्चारण करके आज की कक्षा अंत करेंगे। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम पिबत। सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषदों को गाय की तरह तुलना किया गया है। और दूध गीतामृतम, और गीता जो है भगवत गीता है, दूध है। मतलब सारा उपनिषद का जो निचोड़ है वो गीता का ज्ञान है। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ वत्स है, पार्थ बछड़ा है, अर्जुन बच्चा है। गाय है, दूध देने वाली गाय है, पर जब तक बछड़ा नहीं रहेगा दूध मिलेगा नहीं। करेक्ट? तो ये ज्ञान भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मेरे बहुत आईआईटी में मैं जब पढ़ाई करता था, मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं था। उनको लगता था गाय हर समय दूध देता है। एक बार मैंने बोला कि बच्चा नहीं तो कैसे दूध देगा? हाँ, ऐसा होता है क्या? बच्चा होने के बाद ही दूध मिलता है क्या? मेरे को तो लगता है गाय दूध देता ही रहता है। इस तरह पागल आजकल की जनता है, उनको समझ में नहीं आता है। जिस तरह बिना बच्चे का गाय दूध नहीं देता है, उसी तरह अर्जुन से हम कृतज्ञ होना चाहिए। अर्जुन की कृपा से हमको भगवत गीता का दूध का ज्ञान मिल रहा है। सुधीर भोक्ता, भोक्ता कौन है? हम सब हैं। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो दूध पी रहे हैं। और दोग्धा गोपाल नंदना, और दूध निकाल कौन रहा है? गोपाल नंदना, कृष्ण। तो इस तरह शिवजी, ये श्लोक शिवजी पार्वती देवी को बोल रहे हैं। शिवजी पार्वती देवी को भगवत गीता का गुणगान करते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है दूध के समान है। सो भगवत गीता is all conclusions of all scriptures, and the next is Bhagavad Gita is like a crash course. श्लोक आता है कि कलयुग में आयु घट जाएगा। ये जो श्लोक है, प्रायेण अल्प आयुष सभ्या कलो अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। कि कलयुग में क्या होगा? जना, सारे लोगों का मंद हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे पास इतना बड़ा हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, पर पासवर्ड हम भूल जाते हैं।
डेटा को एक्सेस करने का जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं। मेमोरी बहुत खराब हो जाएगा लोगों का, और इतने सारा वेद उपनिषद पढ़ने का समय भी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने कलयुग चालू होने से पहले भगवत गीता दे दिया, जो सार है। इट्स लाइक ए क्रैश कोर्स, होता है ना 2 महीने का क्रैश कोर्स। इट्स लाइक ए क्रैश कोर्स। भगवत गीता इज ऑल्सो लाइक ए क्रैश कोर्स। एंड फॉर कलयुगवासीज, हमारे पास समय नहीं है, पूरा वेद उपनिषद का श्लोक का सार 700 श्लोक में निचोड़ के भगवान दे रहे हैं। और नेक्स्ट भगवत गीता इज, इट क्लियर्स आवर हार्ट, हमारे हृदय को साफ करता है। शिव जी बता रहे हैं पार्वती देवी को, गीता अध्ययन शीलस्य, कोई अच्छे से अगर गीता का अध्ययन करता है, प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापामि पूर्व जन्म कृतानि च। जितने सारे पुराने जन्म का पाप है जो हमको दुख दे रहा है, हमारे जीवन से शांति ले रहा है, केवल भगवत गीता का ध्यान पूर्वक अध्ययन से हमारा मिट जाएगा सब पाप। ये शिव जी पार्वती देवी को गीता महात्म्य में बता रहे। सो भगवत गीता इज द कंक्लूजन of all scriptures. It is like a crash course, and it clears all the miseries of our life to offer us the real ornament of everyone, that everyone is looking for, that is the ornament of peace and happiness. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. So to summarize, आज हमने डिस्कस किया कि भगवत गीता स्टार्ट्स विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टू चेंज। मनुष्य और पशुओं में अंतर है कि मनुष्य हैव द पावर टू चेंज, एंड पशु एनिमल्स डू नॉट हैव द पावर टू चेंज। अपना स्वभाव, अपना धर्म परिवर्तन करने का शक्ति केवल मनुष्य के पास है, ये महाभारत बताता है। और भगवत गीता प्रथम अध्याय में 3 व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो तीनों डिस्टर्ब है, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन। और तीनों में अंतर यह है, धृतराष्ट्र और दुर्योधन भगवान की प्रेम की शक्ति को अपनाते नहीं हैं, इसीलिए उनका जीवन बदलता नहीं है, उनका जीवन हार हो जाता है, और पांडवों का जीवन विजय में परिणत हो जाता है, क्योंकि कृष्ण की प्रेम को वो एक्सेप्ट किए। और कृष्ण को प्रेम को एक्सेप्ट करना हमारे सबके पास है, वो चॉइस अवेलेबल है। जिस तरह सूर्य है, कृष्ण भी सूर्य है। हमको घर से बाहर निकलने से ही सूर्य मिल जाएंगे, घर में बंद रहेंगे तो सूर्य का आलोक नहीं मिलेगा। उसी तरह हम भगवत गीता हमारे पास अवेलेबल है, टीचर्स आर अवेलेबल, बुक इज अवेलेबल, वी हैव टू जस्ट गिव 1 hour in a week. Then we will learn and accept the power of Krishna's love in our life. और भगवत गीता का गुणगान करते हुए सिर्फ यहाँ पे बोलते हैं कि भगवत गीता is conclusion of all scriptures, it is the crash course and it clears all our misconceptions. Hare Krishna. Thank you very much for attentively hearing the first chapter of Gita. First chapter is not over. Next class we will see the other verses of the first chapter. और क्या first chapter में होता है, and next class will end first chapter. Yes, any question all of you can ask. If anyone has any question, you can Yes, ask. Prabhuji, this is Yes. Ajay Prabhuji. Hello, Ajay Yes. Prabhuji. Yes, please tell. Just one thing, say, बोलिए प्रभु। yeah, Prabhuji, Ajay Prabhuji. Haribol. Please tell. Hello. Yes. I'm hearing. Please tell. In the battle of Kurukshetra, Sri Krishna took some unfair steps, like Yes. while killing Jayadratha and the Karna, Yes. just to bring the victory for, I think, Pandava. So why Yes. he did those things? Yes. So Prabhuji is asking a very one.
Prabhuji, we are not able to hear actually. Hello. I think Prabhuji's net connection has gone. He will just join back in 1-2 minutes. okay. Okay. Thank you. हरे कृष्णा, सॉरी नेट चला गया इधर से। सो क्यों कृष्ण किए, भगवत महाभारत में इसका उत्तर आता है। और उत्तर ये आता है कृष्ण ऐसे क्यों किए, क्योंकि जब अर्जुन को मारने के लिए कृष्ण कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को बोले, तो कर्ण सेम क्वेश्चन पूछता है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कर्ण भी वही क्वेश्चन पूछता है कृष्ण को कि कृष्ण आप तो धर्म भगवान है, आपको धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप कैसे अर्जुन को बोल रहे हैं मेरे को मारने के लिए और अधर्म के पथ में जाने के लिए जो आप बोल रहे हैं। तो कृष्ण बताते हैं, हे कर्ण, जब भीम को आप सबने जानबूझ के विष पिलाया, कहाँ था धर्म। हे कर्ण, जब द्रौपदी को भरी सभा में आप नग्न करने का प्रयास सब किए झूठ मूठ का, कहाँ था धर्म। जब आपने पांडव लोग इतने सरल थे, धृतराष्ट्र ने बोला तो चले गए और लक्षक गृह को जला दिया आपने, कहाँ था धर्म। और वो सब अगर धर्म था तो ये भी धर्म है। तो कृष्ण सिखाते हैं कि कृष्ण is teaching us that when we are dealing with aggressors और आतताई, ये हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में भगवत गीता का पहला चैप्टर में बताया जाता है कि आतताई ना, when you are dealing with aggressors, then the rules and codes of conduct are different. When we are dealing with an aggressor, there are 6 kinds of aggressor mentioned in Shastra. So these 6 kinds of aggressors को साथ जब डील किया जाता है, codes of conduct follow नहीं होता। Even the killing of Abhimanyu was also a kind of in addition. Yeah. Was so horribly treated. तो ये कृष्ण महाभारत में ये बताते हैं कि that कर्ण, दुर्योधन, आप सब आतताई थे और आतताइयों का धर्म अलग होता है। आप खुद पढ़िए शास्त्र, आपको शायद शास्त्र पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो ऐसे महाभारत में आता है। तो आतताई का क्या धर्म है हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ही आता है आतताई नो, भगवत गीता का पहला अध्याय। ठीक है प्रभु जी। So Krishna never broke the rules and regulations. They were actually आतताई कौन होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। There are six types of आतताई। जो जलाता है, जो दूसरे की पत्नी को अपहरण कर लेता है। अगर आपकी पत्नी को कोई अपहरण कर रहा है या निंदा कर रहा है या अपमानित कर रहा है, तो you don't have to follow the codes of conduct। अरे उसके पास हथियार नहीं है तो मैं उसको हथियार देके युद्ध करूंगा। अरे तुम्हारा पत्नी को अपहरण किया, हथियार है या ना है, उसको अटैक करना है, करेक्ट। सो इस तरह शास्त्र आतताइयों के साथ जब युद्ध होता है, तो आतताइयों के साथ युद्ध के समय शास्त्र का अलग नियम कानून होता है। सो लाइक दैट। नेक्स्ट, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? आई थिंक सम क्वेश्चन इज कमिंग चैट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज टेल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी जो आपने आंसर दिया, प्लीज ब्लेस अस। प्रभु जी, आई नीड योर ब्लेसिंग्स नाउ। और ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि आज धाम में बैठ के आपका क्लास अटेंड कर रहे हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में भी आया कि जब आपने आतताइयों के बारे में बताया, तो आतताइयों को हैंडल करने का तरीका अलग होना चाहिए शास्त्र के हिसाब से, लेकिन तब भी तो श्री कृष्ण ने अपनी सेना कौरवों को दे दी। Yes, because
Krishna is family member of both Pandavas and Kauravas, and Duryodhana and Arjun came to request to Krishna, and Krishna is playing the role of a Kshatriya. क्षत्रिय को कोई अगर हेल्प मांगने आता है युद्ध में, उसको देना ही पड़ेगा. तो कृष्ण को हेल्प मांगने आए थे, तो कृष्ण बोले एक तरफ मेरा सेना और एक तरफ में, क्या चाहिए? दुर्योधन बोला मेरे को सेना चाहिए, अर्जुन बोला मेरे आपको चाहिए. So if लेकिन someone comes, कृष्ण तो ग्वाले थे ना, तो क्षत्रिय कैसे? Krishna is king. He was shifted to Vrindavan. So, but actually he's Kshatriya. He's Kshatriya prince in Dwarka. Most of the time he was. हाँ. only राजा 11 है years तो वो he- क्षत्रिय हैं. ओके. जी So जी. he was Vasudev and he was Kshatriya. समझ गया प्रभु जी. गॉड डैम. हरे कृष्ण. Okay. वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. Thank you so much. I'm feeling extremely grateful to be with all of you for your wonderful attentive hearing. Hare Krishna. So we will have next class next week. Hare Krishna.